class 12 students. Today we will discuss about Prime Minister and Council of Ministers, and this is a cartoon. There is no Council of Ministers without the Prime Minister. This cartoon shows how literally द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. तो नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस without mentioning one office, the Prime Minister of India. Prime Minister is very important for a democratic country like India. So the President exercises his power only on the advice of the Council of Ministers. The Council of Ministers is headed by the Prime Minister. उनका head कौन होता है? Prime Minister. Therefore, as head of the Council of Ministers, the Prime Minister became the most important functionary of the government in our country. सबसे important person है हमारे parliamentary system of government में. In the parliamentary form of executive, it is essential that the Prime Minister has the support of the majority in the Lok Sabha. Naturally, जो Council of Ministers elect होती है, that is of majority. और जैसे जो पार्टी majority में होती है और जिसके जो maximum जो candidates हैं वो they have won their seats, so they constitute the government. This support by the majority also makes the Prime Minister very powerful. जो उनका Council of Ministers का leader होता है तो वो that is Prime Minister, और उसकी जो position होती है वो बहुत powerful होती है. The moment this support of the majority is lost, the Prime Minister loses his office. जैसे भी उनकी majority कम होगी तो Prime Minister अपना office lose कर जाता है. For many years after independence, the Congress party had the majority in the Lok Sabha. Lok Sabha में किसकी majority थी? Congress party की थी. And the leader would become the Prime Minister. और 1979 के बाद 1989 के बाद there have been many occasions, कई occasions ऐसे आए, कई समय ऐसे आया जब किसी भी particular party को majority नहीं थी लोक सभा में. No party had majority in the Lok Sabha. Various political parties have come together and formed a coalition. Coalition government बनाई गई, मिलीजुली सरकार कहते हैं उसको. और मिलीजुली सरकार क्योंकि जो different political parties they join their hand and they form a union और join करके उन्होंने majority government form की, और that is coalition government, मिलीजुली सरकार बोलते हैं उसको. In such situation, a leader who is acceptable to most partners of the coalition becomes the Prime Minister. ऐसे situations में क्या होता है कि ऐसा leader जो कि ज़्यादातर जो coalition वाले जो members होते हैं उनको acceptable होता है, he becomes the Prime Minister. Formally, a leader who has the support of the majority is appointed by the President as Prime Minister. और normally एक ऐसा leader जिसके पास majority का support हो वो Prime Minister choose किया जाता है President के through. The Prime Minister then decides who will be the ministers in the Council of Ministers. ये किसका work है? Prime Minister का. और वो decide करता है कि कौन जो उसकी Council of Minister होगी, जो मंत्री परिषद होगी उसमें कौन से ministers होंगे. The Prime Minister allocates ranks and portfolios to the ministers. और वो different ministers को different मंत्रियों को portfolios या विभाग देता है और ranks भी provide करता है depending upon the seniority and the political importance. और उनकी कैसी पोजीशन है, सीनियर पोजीशन पर हैं तो मिनिस्टर्स आर गिवन द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स. मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर उनका अकॉर्डिंग टू देयर रैंक एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द देयर सीनियरिटी they have given the ranks. Chief Minister of the states whose ministers from their own party on coalition, the Prime Minister and all the ministers have to be members of the parliament. ये प्राइम मिनिस्टर और साथ में जो सारे मिनिस्टर जो चूज़ करता है उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है, MPs होते हैं. इफ़ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट, अगर वो MP नहीं है
or without being an MP, such a person has to get elected in the parliament within 6 months. अगर कोई ऐसा मिनिस्टर चूज होता है जो कि पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो ऐसे पर्सन को इलेक्ट विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट जो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइन करना पड़ता है. तो यहाँ पर कई बार यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दे आर सम मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि सिर्फ लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्टेड हुए थे, बट नॉट सिलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर. तो यहाँ पर अब साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कितने मिनिस्टर्स जो होते हैं वो दे फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. तो यहाँ पर देखिए, देयरफॉर एन अमेंडमेंट वाज मेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall not exceed 15% of the total number of members of the house of the people. जो 15% होने चाहिए सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद इतनी होनी चाहिए. इन द चैप्टर ऑन लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, इसके ऊपर जो चैप्टर है, यू विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट द वेरियस मैकेनिज्म्स थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव पर अपना कंट्रोल रखती है. But remember, the most important feature of the parliamentary executive is that the executive is routinely under the control and supervision of the legislature. तो देखिए, पार्लियामेंट्री जो एग्जीक्यूटिव होते हैं कि एग्जीक्यूटिव इन पर किसका कंट्रोल होता है और कौन सुपरवाइज करता है, लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर जो है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है, वो दैट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज दीज एग्जीक्यूटिव्स. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. लोक सभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. This provision means that a ministry which loses confidence, जो confidence motion जो होती है कि majority जो है they form the government, अगर वहाँ पर उस confidence motion में वो हार गए हैं और they loses their seats, तो they have to resign. The principle indicate that the ministry is an executive committee of the parliament. ये जो मिनिस्ट्री होती है ये एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है पार्लियामेंट की, और ये पार्लियामेंट के बिहाफ पर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट के बिहाफ पर ये वर्क करते हैं, गवर्न करते हैं कंट्री को. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट. और इनकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है, और ये किस पर निर्भर करती है, ऑन द सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट जो होते हैं उसकी कितना वो सॉलिडर है, मतलब इकट्ठे हैं वो, दे आर मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं. इट इम्प्लाइज दैट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एक अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है फॉर वन सिंगल मिनिस्टर कि जो पीपल दे डोंट एग्री विद दैट मिनिस्टर, तो कई बार क्या होता है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रेजिग्नेशन देना पड़ता है. इफ ए मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिज़ाइन. वो रिज़ाइन भी दे सकता है अगर वो कैबिनेट के जो पॉलिसीज होते हैं उनसे डिसएग्री करता है. इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देयर इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सामूहिक जिम्मेवारी है उनकी कि उन्हें हर जो पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है, पार्लियामेंट चलती है, उसके लिए एग्री करना पड़ता है फॉर एवरी मेंबर. In India, the Prime Minister enjoys a pre-eminent place in this government. उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. The Council of Ministers cannot exist without the Prime Minister. The Council comes into existence only after the Prime Minister has taken oath of office. जब Prime Minister प्रतिज्ञा लेता है कि वो ये ऑफिस होल्ड कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो उसको जो काउंसिल जो होती है वो उसके बाद आती है, फिर देन काउंसिल वाज चूजन. द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली brings about the dissolution of the council of ministers. अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है, रेजिग्नेशन देता है प्राइम मिनिस्टर,
तो उससे क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसोल्यूट हो जाती है, मतलब वो भंग हो जाती है लोकसभा। बट द डिमाइज, डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ अ मिनिस्टर, और अगर कोई मिनिस्टर नहीं रहता है या फिर वो डिसमिस हो जाता है अपनी पोजीशन से, या उसका रेजिग्नेशन देता है, तो सिर्फ मिनिस्ट्रियल वैकेंसी क्रिएट होती है मिनिस्टर के अगेंस्ट, और कोई मिनिस्टर फिर उसकी पोजीशन फिलअप कर देता है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा होता है, प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है, तो या फिर वो डिसमिस होता है या उसको डिमाइज होता है, तो उसके कारण डिमाइज मतलब नहीं रहता है, तो वो जो पूरी पूरी लोकसभा भंग हो जाती है। It is this role of the Prime Minister which Pandit Nehru to let Pandit Nehru to describe him as the linchpin of the government. ये जो गवर्नमेंट का एक मतलब वीक पॉइंट भी कह सकते हैं. इट इज़ आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर to communicate to the president all decision of the council of ministers related to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation. तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को सारे डिसीजन जो कि प्राइम मिनिस्टर लेता है, वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है कि वी हैव टेकन दिस डिसीजन, एंड जितने भी प्रपोजल्स होते हैं लेजिस्लेशन के, लॉ मेकिंग प्रपोजल्स होते हैं, वो सारे प्रेसिडेंट के सामने रखता है. द प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन ऑल क्रूशियल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट. जितने भी जो डिसाइसिव रोल प्ले करती है गवर्नमेंट, उसमें प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होता है एंड डिसाइड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, नीतियों को के बारे में डिसाइड करता है. Thus the power wielded by the Prime Minister flows from various resources. जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं वो कई सोर्सेज से आती हैं. अब उसका एक कंट्रोल होता है ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लीडरशिप ऑफ द लोकसभा, कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन. जितनी भी ब्यूरोक्रेसी होती है उसके ऊपर उसकी कमांड होती है. उसका असेस होता है मीडिया के लिए, असेस टू मीडिया, जो भी क्या विचार या क्या प्रोपोगंडा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या ओपोज मतलब उसके फेवर में करना है, तो दैट ऑल इज असेसिबल टू प्राइम मिनिस्टर. प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज़ ड्यूरिंग इलेक्शन. अब इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें एक पर्सनैलिटी को, एक लीडर को प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये उसकी इमेज प्रोजेक्ट की जाती है कि बेटर है, चूज़ हिम और हर एज अ लीडर. ये प्रोजेक्शन जो होती है एज अ नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिटरी एज वेल एज फॉरेन विजिट. और जो विदेशों में जो विजिट होते हैं उसमें भी वो जो लीडर होता है वो उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ये अपकमिंग लीडर है. तो हाउएवर the power which the prime minister wields and actually puts into use depends upon the prevailing political conditions.